کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی، اور جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا، اس وقت سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ دوسرا جو ورد ہے وہ ہے مقدس مرکز کی معرفت لکھا جانے والا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب، اس کی پہلی 11 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے۔ مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا، اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے، اور وہ اس پر سوار ہو گیا۔ اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھائے، اور اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و تعریف کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کے بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند تو میری کمزوریوں سے واقف ہے، اپنے نام کو جلال دے، اور آج اے خداوند ہم سے ہم کلام ہو، میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے۔ اے خداوند کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر کر، اور اے خداوند تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اے خداوند عقل و دانش بخش، تاکہ خداوند کلام مقدس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ موجودہ حالات کے اندر، موجودہ ادوار کے اندر ہمیشہ چہرے بدلتے رہتے ہیں، لیکن کام، افعال اور حالات جو ہیں وہ ایک جیسے جو ہیں دنیا کے اندر چلتے رہتے ہیں۔
ہر چیز جو ہے اپنے آپ میں ایک نیا پن پیدا کر کے سامنے آتی ہے، وہ چاہے بدی ہو یا وہ نیکی ہو۔ تو یہ حالات، جن حالات میں خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے 33.5 سال اس دنیا کے اندر گزارے، تو حالات اس وقت بھی نہایت نگفتہ بے تھے۔ خداوند جس علاقے میں رہ گئے تھے، اس علاقے کے حالات کچھ ایسے تھے کہ جب فلپ نے نتنیل سے کہا کہ ہمیں کرسٹس مل گیا ہے، ہمیں مسیح مل گیا ہے، ہمیں وعدے کا فرزند مل گیا ہے، ہمیں اسرائیل کی امید مل گئی ہے، ہمیں اسرائیل کا نجات دہندہ مل گیا ہے، ہمیں اسرائیل کا بادشاہ مل گیا ہے، تو نتنیل کہنے لگا کون ہے وہ، کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو فلپ اس کو کہنے لگا یسوع ناصری۔ اس نے کہا، نتنیل نے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس علاقے میں خداوند رہ رہے تھے، اس علاقے کے حالات اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ لوگ اس بات کا تصور نہیں کرتے تھے کہ وہاں سے کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی تحریک نکلے گی۔ جب تحریک کا لفظ آیا تو ہوشنا جو ہے یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحریک ہے، کسی چیز کے اندر سے نکل آنے کی تحریک، کسی چیز کے مخالف کھڑے ہو جانے کی تحریک۔ ہوشنا، ہمیں محفوظ کر، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم اجڑ گئے ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہمیں محفوظ کر۔ کیونکہ جس دور میں خداوند یسوع مسیح آئے، اس دور میں حالات اس دور سے بدتر تھے جب سیموئل اس قوم کی قیادت کر رہا تھا، جب قضات کی کتاب کے اندر قاضی جو ہیں وہ اس قوم کی قیادت کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل بدی کرتی، خدا انہیں غیر قوموں کے ہاتھوں بیچ دیتا، اور جب بنی اسرائیل روتی گڑگڑاتی تو خدا ایک شخص کو اٹھاتا اور وہ اس کے پیچھے یہی نعرہ لگاتے، ہمیں محفوظ کر، مبارک وہ ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لیکن وہ سب نعرے ایک نعرے کی ابتدا تھی، ایک ایسی شخصیت کے آنے کی راہ تیار ہو رہی تھی جو شخصیت جو ہے اس نعرے کا حاصل تھا، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نعرہ خداوند یسوع مسیح کے دور کے اندر، جب خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جو ہے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، تو خداوند کہتے ہیں، جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو خداوند کہتے ہیں اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا خداوند کہہ رہے ہیں ایک اور معجزہ ہو جائے گا؟ کیا خداوند کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کو طاقت جو ہے ان لوگوں کو مل جائے گی جو پتھر ہے، بے جان ہے؟ نہیں، بلکہ خداوند ہماری توجہ اس وقت کے حالات کی طرف جو ہے وہ دلا رہے ہیں کہ اس قدر حالات خراب ہیں کہ اگر جیتی جاگتی چیزوں کے اندر احساس نہ پیدا ہوا تو مردہ چیزیں جو ہیں وہ چلا اٹھیں گی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناجائز ہو رہا ہے۔ حالات اس قدر خراب تھے کہ مذہبی رسومات جو ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہیکل میں آئیں۔ کوئی غریب غربا ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اندھا لنگڑا ہیکل میں آ نہیں سکتا تھا۔ جو خدا کا گھر تھا، جو
लोगों की तसल्ली का घर था, जो लोगों के लिए दुआ का घर था, जो अपनी मुश्किलात पेश करने वाला घर था, उस घर तक किसी कमजोर आदमी की रसाई नहीं थी। हैकल की रसूमात पामाल हो रही थी। नजायज नफा के लालचियों का दौर दौरा था। मजहबी रहनुमा सो रहे थे, क्योंकि हर कोई, अगर आप मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब पढ़े तो खुदावंद वहां पर बड़े खूबसूरत तरीके से मजहबी रहनुमाओं की अक्कासी करते हैं कि वो कैसे हैं। वो कहते हैं, आए फकीरों फरीसियों, तुम पर अफसोस कि ये बात कहते हो कि अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए और पूरी ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई कुर्बान गाह के सोने की कसम खाए तो उसको लाजमी अदा करना पड़ेगा। क्या सोना कीमती है या कुर्बान गाह? फर्क ये था कि कुर्बान गाह के सोने की कसम खजाने में आती थी और कुर्बान गाह की कसम जलाई जाती थी। जिसमें उनका फायदा था वो कानून बन गया, और जिसमें अवाम का फायदा था उसको छोड़ दिया। उसने कहा, आए फकीरों फरीसियों, तुम पर अफसोस कि बच्चों को कहते हो कि जो चीज माँ बाप की जरूरत है, अगर वो खुदा की नजर हो गई तो माँ बाप का कोई हक नहीं रहा उस पर। तुम जीरे और पुदीने पर दयकी देते हो और ऊंट निगल जाते हो। आज यीशु मसीह के पीछे यही नारा लगाने वाले लोग, होशाना हमें महफूज कर, ये वो लोग हैं जो रोम के खिलाफ नफरत रखते हैं। वो तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह का इरादा और है, उसकी मंजिल और है। हाँ, उसने चंद इक़्तिदाम ऐसे किए कि उन लोगों को तसल्ली हो। मिसाल के तौर पर वो हैकल में गए और उन्होंने जाकर हैकल की सफाई कर दी। तमाम कबूतर फरोशों के और मनी एक्सचेंज करने वालों के और भेड़ बकरियां बेचने वालों के बाड़े तख्ते उलट पुलट दिए और कहा, निकल जाओ मेरे बाप के घर से, क्योंकि मेरे बाप का घर दुआ का घर है और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। लोग बड़े खुश हुए, अब अच्छा होगा, अब हमारे लिए आजादी आएगी, अब हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे, हम इसकी क़यादत में हम अपने खुदा को राजी कर पाएंगे। लेकिन नहीं समझते थे कि खुदा का इरादा कुछ और है। खुदा उन्हें उस दलदल से निकालना चाहता है जिस दलदल में वो आदम से लेकर अब तक पिसते आ रहे हैं। और यूं मरकज की इंजील में एक बड़ी खूबसूरत आयत, एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा हमें मिलता है, और वो ये है कि वो कहते हैं 10वीं आयत, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे बाला पर होशाना। दाऊद की बादशाही, दाऊद से कई 100 साल बाद एक शख्स आता है दाऊद की नस्ल से, लेकिन उसको दाऊद के साथ जो है मिलाया जाता है। क्यों उन्होंने कहा कि हमारे बाप दाऊद की बादशाही? उन्होंने यीशु मसीह के अंदर दाऊद की खसूसियात देखी। वो सच्चाई का पैरो है, वो एक अच्छा मुहाफिज उन्हें नजर आता है। और आप देखते हैं दाऊद जो है खुदा के लिए कितनी बड़ी गैरत रखता था। पहला शमूएल उसकी 17वें बाब की 26वीं आयत, और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फलस्ती की को मार कर ये नंग इसराइल से दूर करे, उससे क्या सलूक किया जाएगा?
क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फसीयत करे। कहानी आप सब जानते हैं, जूलियत को आप सब जानते हैं, उसके अंजाम को आप जानते हैं, लेकिन मैं चंद लम्हों के लिए आपको दाऊद के एहसासात और जज्बात से रूशनास करवाना चाहता हूं। मसा हो चुका है, खुदा का रूह उस पर जोर से नाजल होना शुरू हो चुका है और खुदा ऐसे वसाइल बना देता है कि दाऊद उस जंग के मैदान में जाए और फलस्ती को ललकारे, फलस्ती को गिराए और कौम बनी इस्राएल की हिम्मत बनाए। और उसने ऐसा किया। उसने उस बड़े पहाड़ को, उस नाकाबिले तस्खीर शख्स को सिर्फ एक पत्थर से गिरा दिया और उसका सर उसी की तलवार से जो है वो काट डाला और खुदावंद ने उस जगह पर एक बड़ी फतह पाई। और ये इसलिए हुआ कि वो क्या कहता है फलस्ती को, तू तो भाला और बर्छी लेकर मेरे मुकाबले के लिए आता है, मैं रब्बुल अफवाज के नाम से आता हूं जिसकी तूने फसीयत की है, और वो आज ही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। पहला शमूएल 17वां बाब उसकी 45वीं आयत। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीयत की है, तेरे पास आता हूं। क्या मसीह ने भी ऐसा ही नहीं कहा दुनिया को? मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 43वीं है, मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। मैं रब्बुल अफवाज के नाम से आया हूं। जूलियत को दाऊद कहता है, मैं अपने बाप के नाम से आया हूं। यहूदियों को मसीह कहता है और कहते हैं कि अगर कोई अपने ही नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। खुशामदी अल्फाज से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। आपको जो है वो अच्छा दिखाई दे तो आप कबूल कर लोगे, लेकिन सच्चाई को कबूल करना आपके लिए मुश्किल है। क्यों वो दाऊद का नाम लेकर ये कहते हैं कि दाऊद की बादशाही जो है वो आ रही है, आलमे बाला पर होशना, क्योंकि दाऊद एक अच्छा मुहाफिज था। पहला शमूएल उसका 30वां बाब 19वीं है। और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल और ना कोई चीज जो उन्होंने ली थी, दाऊद सब का सब लौटा लाया। ये उस वक्त का वाकया है जब दाऊद शाऊल से डर कर भागा हुआ था और एक जगह पर फलिस्तियों की मदद कर रहा था, तो अमालीक आए और इसके सारे गिरोह की औरतों को, बच्चों को, माल मुआशियों को सब कुछ लूट कर ले गए। और जब दाऊद वापस आया, बहुत रोया और खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाया, पूछा कि खुदावंद मैं जाऊं, मैं पीछा करूं, मैं उनको पालूंगा? खुदावंद ने कहा हाँ तू पालेगा। और वो अपने लोगों को लेकर गया। कुछ लोग रास्ते में थक गए। उन आप जानते हैं जब हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है तो कई बार हमारे अज़ा जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, दिलगीर हो जाते हैं, हम कमजोरी महसूस करते हैं। तो ऐसे लोग इसके गिरोह में भी थे। जब वो थक गए तो उसने उनको कहा तुम यहाँ आराम करो, हम आगे जाते हैं। और फतह पाई, लौटा लाया लोगों को। और जब उन लोगों को वापस आकर उनकी खैरो आफियत पूछी
तो जो खबीस लोग थे उसकी फौज के अंदर, वो कहने लगे ना ना ना, ये यहाँ रह गए थे, थक गए थे, ये जो है हमारे साथ लड़ाई पर नहीं गए, तो सिर्फ इनकी बीवी और बच्चे इनको लौटा दो, लेकिन जो भी हमारा लूट का माल है उनमें से इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन दाऊद ने उनको कहा नहीं, जितना हम इस माल के हिस्सेदार हैं उतना ही ये इसके हिस्सेदार हैं, क्योंकि ये सब हमें खुदावंद ने अता किया है, ये सब हमें खुदावंद ने दिया है। और जरा मुवाजना करें इस बात का यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील 18वां बाब 9वीं आयत, ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया मैंने उनमें से किसी को भी ना खोया। इस कदर वो अपने लोगों के साथ व्यवस्था था, दाऊद की तरह। इसीलिए तो बैत फिगे के ऊपर जब खुदावंद की नजर यरूशलेम पर पड़ी तो बैत फिगे से यरूशलेम का शहर पूरा नजर आता है। वो एक वादी के अंदर है, पूरा नजर आता है। और खुदावंद उसको देखकर उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने कहा, आए यरूशलेम, आए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है, मैंने कितनी बार चाहा कि तेरे बच्चों को अपने परों के नीचे जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को छुपाती है छुपा लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। आज इस बात पर गौर कीजिए, हमारा नारा तो होशाना का है, हमारा नारा तो तहरीकी है, हमारा नारा तो चंद चीजों के खिलाफ है, लेकिन क्या हम दिली तौर पर उन चीजों से निकलना भी चाहते हैं, या हम सिर्फ एक को उस आग में घोंप कर, उस आग में झोंक कर हम उसको अपने लिए जो है एक जरिया बना रहे हैं। जब तक हम इस कायदे कानून पर चलते रहेंगे, ये वही भीड़ है जो चंद दिनों के बाद इस यही हाथ जो डालियां लेकर लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे। डालियां जो है किसी भी दरख्त की खूबसूरती को बयान करती है, तो कपड़ा जो है हमारे माशरे के अंदर ये इज्जत और तकरीम को बयान करता है। और ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की नजर करने के बाद ये वही लोग हैं जिन्होंने पिलातूस की अदालत के बाहर अपने हाथों को लहराकर जो कल ये नारा लगा रहे थे, होशाना, मुबारक वो है जो खुदावंद के नाम से आता है, आज कह रहे हैं इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर, क्योंकि ये हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, इसने हमारे तरीके से काम नहीं किया, इसने झूठ की पैरवी नहीं की, इसने गरीब को कुचला नहीं है, इसने गरीब के हक नहीं मारा है, इसलिए इसको मसलूब कर, इसको मसलूब कर। आइए आज हम इन अल्फाज पर गौर करें। हमारा नारा किस हजूम के अंदर है, हमारा नारा किस शख्सियत के पीछे है, हम किन चीजों से उकता गए हैं, हमारे इर्द गिर्द के हालात कैसे हैं, क्या हम खुदावंद की नजर में सही रास्ते पर हैं, या हमारे लिए खुदावंद ये कह रहा है कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। आप अगर हालात के खिलाफ नहीं जाते, आप अगर हालात की रूसियाई पर बात नहीं करते, आप अगर किसी को गलत कह नहीं सकते, आप खामोश रहें, आप खामोश रहें। लेकिन कोई ना कोई ऐसा बेकार, बेजान, जिसकी कोई अहमियत नहीं है माशरे में, वो अगर आवाज उठा देगा उसके खिलाफ, आपकी कदर व मसलहत कम हो जाएगी, लेकिन उसकी कदर व मसलहत बढ़ जाएगी। इसलिए खुदावंद ने कहा कि जिन हालात के अंदर ये पिस रहे हैं,
इनका बोलना हक है, इनका ये बोलेंगे और इनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आइए आज हम भी इसी होशाना की पैरवी में खुदावंद यीशु मसीह के पास उस जज्बात और अज़म के साथ जाएं कि कल हम अपने इरादों को ना बदलें, कल हम अपने जज्बात से आरी ना हों, कल हम ऐसा ना कहें कि नहीं नहीं वो तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। खुदावंद कहते हैं कलाम मुकद्दस में, फरिश्ते के सामने जल्दबाजी में कोई मन्नत ना मान। ऐसा ना हो कि जब तू अदा ना कर सके तो फिर तुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़े। और ये ना कहे कि ऐसे ही अचानक हो गया। ये एक अहद है, होशाना एक अहद है, होशाना एक अज़म है, होशाना एक तहरीक है। इसलिए अपने आप को जांचें और इस नारे को अपनी जिंदगी में इस कदर गहरा अपनाएं कि ये नारा जब आपके मुंह से निकले, जब आपके हलक से निकले, तो बहुत सारी बदियों, नाचाकियों और गलत कार्यों के सर को कुचल दे। जिस तरह खुदावंद ने कहा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदावंद हमें इस कलाम के सबसे बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए हम दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमाते बरकत के साथ रुखसत करें। खुदा में यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे पैगाम के लिए। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम वफादारी से खुदावंद तेरे वफादार रहें, तेरा नाम जलाल पाए। फिर से खुदावंद हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर। खुदावंद जो भाई बहनें आए नहीं, खुदावंद तू उनकी हिफाजत कर और उनको अपना पैगाम दे। प्यारे खुदावंद रूत और विल्सन को ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, और खुदावंद यूसुफ को और अजरा को खुदावंद तू ताकत दे, शफा दे, तेरा नाम जलाल पाए। प्रवीण को खुदावंद तू टच कर खुदावंद और उसको शफा दे, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर। तेरे इस बड़े दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।